So guys, let's focus today, and you need to have a good focus now in the class, guys. And today I'm planning to do some experiments as well, right? We'll use Google Colab. So I'll come to that today. Okay. So guys, let me start now. First of all, guys, I'm going to reiterate again that how the you know reinforcement learning looks like. Okay, so if I say reinforcement learning cycle, so reinforcement learning cycle, if I say, guys, what is the cycle? Now guys, that there is a agent. So this is our agent, right? This is our agent, and there is the environment. Okay, so this is our environment. Okay, now guys, agent, right, starts taking some action, but before taking some action, obviously he has to start from a certain state, right? किसी ना किसी एक स्टेट से तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. So obviously, you know as a first step, maybe you can say agent is in some state in the beginning, right? वो किसी एक state में है. Now guys, now our agent, based on the state, the current state basically, right? Now our agent will take some action, and it will decide the next action, right? So it decides the next action, guys. So what is the decision it is taking? It is taking a decision that what should be my next state, right? And obviously whenever he takes a action, right? So whenever he takes a action, so guys, in the first step, he is starting with a certain state. In the next step, he is deciding what next action I need to take. So as of now, it is just deciding. And in the third step, guys, our agent is taking a action, right? And now the environment will respond to that action. So obviously now what environment will do? Environment will also change the state. Okay, so that would be our fourth a sequence. So guys, now can you see what is happening here? So this is the starting, right? So where it starts with some state. Okay, and now this agent decides which action to take place. So that is the second step, guys. And the third, it will actually take the step. And the fourth, the environment will respond to that action taken by the agent, and it will change, or it may change the state. And obviously along with the change in the state, right, you have a reward as well. Okay, you have a reward as well. Okay, guys, do you remember in the last class I told you about that multi-armed bandit, right? I will come to that, may not be in this class, maybe in the next class, right? But today we are going to start some a basic operations in the Python code, guys. So that is there. So guys, let me share the guys, let me tell, are you guys okay with this, right? So Nishu is saying, sir, what is the state? So state, I will define it a little later as of now, but state is kind of a current situation you are in, Nishu, right? The kind of current situation you are. For example, you are driving a car, okay? In this case, you are an agent and the car is the environment, Nishu, right? And let's say you are starting. So how you start? So you start with a car where it is in a neutral state. Maybe brakes are also there, right? And the ignition is off, right? So that would be there. So this is the one state. And now what you do in the so you sit on the seat, and now what is your next action? You start the ignition. So that is your ignition. And what will happen in that case? In that case, your car comes in a state where your
engine is running but still your gear is neutral, right? So this is the state. The next action you can take an issue is that you go to a first gear, for example, right? So that becomes your action, and now the environment, now the car will respond accordingly. So these are the states, right? So that is there. So now agent is basically controlling, right? And the environment is responding to that. So agent, the Nishu which is there, which is driving, is our agent. It is having some control on the environment. Chandraprakash, Nishu, is that clear? Okay. Yeah, I will, Vishal, I will come to that. This is our reinforcement learning cycle. I will come to more explanation a little later, but I think I need to tell you a couple of examples. Then I think things will become more clear to you. Okay, guys? Yeah. देखिए, जब भी हमने इस लास्ट डायग्राम को समझा, राइट? या अंकित, आई विल टेल यू, अभी देखते हैं मैं क्या क्या कहानी है आरएफ का, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा. दैट्स गुड, गुड क्वेश्चन अंकित. या नाउ गाइस, सबसे पहले समझ लीजिए इस चीज को कि हमारे पास दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में. सो टू कोर कंपोनेंट्स, ओके, two core components in reinforcement learning. दो कोर कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो मैंने अभी डायग्राम में बताए भी थे आपको. One core component is our agent, okay, and the another core component is environment. Okay, so this is there. Okay, now guys, apart from the academic or theory definition, मैं simply आपको ये बता दूं कि ये जो एनवायरनमेंट है, किसको कहते हैं हम एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट कहते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को, राइट? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एनवायरनमेंट. जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, जिसको आप मैनेज करना चाहते हो, वो प्रॉब्लम, उसी को हमने क्या नाम दिया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में? एनवायरनमेंट का नाम. That is there. Okay. Now, agent क्या represent करता है? Agent represents the solution. Agent represents the solution. Solution to what? Solution to this problem, guys, that we are talking about. Solution to this problem. Okay. Now, guys, इसका मतलब agent क्या हो गया? Agent हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका काम ये है, उसका रोल ये है कि उसको डिसीजंस लेने हैं, और डिसीजंस इस तरीके से लेने हैं कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, राइट? एंड ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पर उसको काफी सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट? बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस. उन कंडीशंस को ही हम एक तरह से स्टेट कहेंगे, राइट? ये चीज यहाँ पे है. अब जैसे आप इसको एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल अगर मैं इसमें ले लूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक गेम कभी खेला होगा, ज्यादातर बच्चे खेलते रहते हैं, टिक टैक टो गेम, राइट? टिक टैक टो. ये टिक टैक टो गेम में अगर हम बात करें कि कौन एनवायरनमेंट है और कौन सॉल्यूशन है, एक बार बात करते हैं, राइट? कौन एनवायरनमेंट और कौन एजेंट है. गाइस देखो, ये एक गेम होता है, बोर्ड गेम है, सबको पता है, राइट? तो जो प्लेयर है, राइट, जो प्लेयर है जिसको ये गेम खेलना है, वो हमारा एजेंट है, राइट? सो ये तो बन गया हमारा एजेंट. और बाकी क्या चीज? बाकी चीज ये है कि जो बोर्ड गेम है जिसपे ये सब चल रहा है पूरा काम, राइट? बोर्ड गेम प्लस जो दूसरा प्लेयर है जिसके साथ आप खेल रहे हो, अनदर प्लेयर, राइट? वो हमारा एनवायरनमेंट. सो ये तो हो गया you, right? You as a player, right? You as a player, you are there. So you are an agent, right? And this is our environment, guys. कौन सा गेम? मतलब चेस का गेम मान लेते हैं. अगर हम चेस की बात कर लें तो चेस पे चेस का जो बोर्ड है, जो मैट्रिक्स है,
राइट, वो हो गया। और सामने जो खेल रहा है आपके, तो वो तो रिप्रेजेंट करेंगे एनवायरनमेंट को, और आप हो गए उसके एजेंट। एंड ऑब्वियसली नाउ यू हैव टू इंटरेक्ट, राइट। आप कुछ एक्शन लोगे तो फिर चेंजेस होंगे, फिर वहां से कुछ रिएक्शन होगा, फिर आप कुछ करोगे, ये चीज है यहाँ पे। अब बताएं कि अब आपको एजेंट और एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा क्लैरिटी हुई कि क्या एजेंट होता है और क्या एनवायरनमेंट। राइट, आप चैट विंडो को यूज किया करें, राइट, तो पता चले मुझे एग्जैक्टली क्या हो गया। ओके, नाउ गाइस, दो चीजें हैं, इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए इसको, राइट। नाउ गाइस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के भी दो तरीके हमारे पास आते हैं। एक तरीका तो ये है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि एजेंट को, राइट, एजेंट हैज नो आइडिया अबाउट अ स्टेट इन एनवायरनमेंट, राइट। कई बार ऐसा होगा कि एजेंट को एनवायरनमेंट की पूरी पूरी नॉलेज नहीं है, और उस पूरी नॉलेज में उसको नहीं पता है कि अभी उसकी कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट नहीं है। इस तरीके के केसेस में, राइट, इस तरीके के केसेस में हम इस प्रॉब्लम को एक तरह से कहते हैं मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, एक तो चीज ये होगी। दूसरी सिचुएशन ये है जहां पे एजेंट को पता है कि अभी फिलहाल कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट नहीं है। सो एनवायरनमेंट के बारे में उसको काफी कुछ क्लैरिटी है, राइट, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अराउंड एनवायरनमेंट, राइट। उसके साथ उसकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है। इस तरीके के केस को हम लोग कहते हैं मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चीज हो, राइट गाइस। तो एक तो हो गया मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और एक कॉन्सेप्ट हो गया मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, नाउ गाइस, यहाँ पे जनरली जो मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है ना, वहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब आएगा तो देखेंगे कि क्या चीज हो रही है। सो जो मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स होती हैं, उनको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने अभी तक फिलहाल जो आपको कवर किया वो क्या है, एक तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की साइकिल को मैंने दोबारा से बताने की थी, कोशिश की थी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम कर रहा है, कि कैसे उसमें दो कोर कंपोनेंट हैं, एक तो एजेंट हो गया और एक हो गया हमारा कौन, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कौन है, हमारी प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन है एनवायरनमेंट, और एजेंट कौन है, हमारे सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है आपका एजेंट, राइट। तो और उसको फिर मैंने टिक टैक टो या चेस गेम के थ्रू बताने की कोशिश भी की थी आपको कि कौन इसमें एजेंट होगा और कौन इसमें एनवायरनमेंट होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक को हम मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, एक को हम मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। इन केस ऑफ ए मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एजेंट को एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत लिमिटेड उसके बारे में उसको पता है, राइट। और एक है कि जिसमें उसको एनवायरनमेंट की कंप्लीट डिटेल्स उसके पास हैं। तो जहां पे उसको नॉलेज एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, कई बार वो अनसर्टेनिटी में एक्शंस ले रहा है, इस तरीके के केसेस मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाएंगे। जहां पे ऑलरेडी एनवायरनमेंट के बारे में हमारे पास काफी सारे आइडियाज हैं, कौन सी स्टेट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, वो केस कहलाता है मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लोकेश, अब ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? लोकेश लाडना, ओके। अब गाइज, आगे की बात करने से पहले अब हम थोड़ा सा आज हम कुछ कोडिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जहां पे हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अराउंड। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, राइट गाइज। सबसे पहले मैं क्या यूज करने वाला हूं अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एज ऑफ नाउ मैं यूज करूंगा गूगल कोलैब को। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? गूगल कोलैब।
अब ये गूगल कोलैब क्या है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि अरे क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कोलैब है, राइट। और इस कोलैब में अगर हम देखें तो इसका जो इंटरफेस है, यूज करने का जो तरीका है वो जुपिटर नोटबुक्स के जैसा है, जुपिटर नोटबुक्स, राइट। और इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे जो फाइल बनेगी, वो फाइल जिसमें हमारा कोड होगा, वो फाइल .py एक्सटेंशन से सेव नहीं होती है, राइट। इसका एक्सटेंशन रहता है IPYNB। कैन यू सी गाइस, ये एक्सटेंशन है IPYNB। इसका मतलब क्या है, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक्स, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे रन टाइम में मैं अगर जाऊं सो एक बार चेक करिए, देखिए रन टाइम। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आनी चाहिए मेरे हिसाब से, चेंज रन टाइम टाइप। कैन यू सी गाइस, दिस इज चेंज रन टाइम टाइप। और यहाँ पे आप देखेंगे हार्डवेयर एक्सेलरेटर अभी नन दे रखा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जीपीयू या टीपीयू को सेलेक्ट कर सकता हूँ। नन का मतलब है अब ये सीपीयू बेस्ड कंप्यूटेशन है, आप चाहें तो जीपीयू को यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सो ये पावरफुल देन सीपीयू, सीपीयू से ज़्यादा पावरफुल होते हैं जीपीयूज, और जीपीयू से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं टीपीयूज, जिनको हम लोग टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसके बारे में बात हम कभी बाद में कर लेंगे। तो मैं जीपीयू को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने हुई है। और अब हम जो भी कोड लिखते हैं वो पाइथन 3 में ही लिखते हैं, यू नो, वी राइट द एंटायर कोड इन पाइथन 3 ओनली। दूसरी चीज ये है गाइस, ये जो आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, राइट, here I can write my Python code, so I can write something like print hello, okay, so this is how I can write it। और मैं इसको यहाँ पे रन कर सकता हूँ, राइट। तो हेलो आ गया, मैं इसका आउटपुट को क्लोज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल टू यूज, ओके। मैं चाहूँ तो अपना इसमें एक टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही मैं अपना माउस इसके इस बाउंड्री के एंड पर लेके आया तो मुझे कोड और टेक्स्ट दोनों चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ मैं कोड और टेक्स्ट को, मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया दिस इज द क्लास ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लेट्स से, सो ये एक तरह से हम कुछ नोट्स या कुछ हेडिंग्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये पूरा एक HTML एडिटर है, आप चाहें तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं फॉन्ट्स और ये सब चीज़ें। सो हियर यू कैन सी गाइस, सो दिस इज हाउ एंड व्हेन आई डबल क्लिक आउटसाइड, जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो आप देख रहे होंगे कि ये दिस इज द क्लास ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। सो ये एक HTML टेक्स्ट है। मैं इसको बहुत सारे कर सकता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो वापस एडिटर ओपन हो जाएगा। आई कैन मेक इट इटैलिक, आई कैन मेक इट बोल्ड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो गाइस हियर यू कैन सी दिस इज अवर तो इस कोलैब का फायदा यही है कि हम कोड भी लिख सकते हैं, साथ साथ हम जो भी हमारे कोड से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ नोट्स हैं जो जो हमें रखने हैं अपने पास, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। दैट इज अ गुड एडवांटेज, ओके। नाउ गाइस हम क्या करेंगे, मैंने आपको कुछ शायद लास्ट क्लास में भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए राइट कौन सी हम पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे, राइट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए कौन सी पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो अब सबको पता है कि यार हम पाइथन की दुनिया में फिलहाल जी रहे हैं, विच इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ऑफ नाउ। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करना है, राइट, तो 3 लाइब्रेरीज का बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एक लाइब्रेरी तो आपको पांडाज आनी चाहिए, राइट, एक आपको नम्पी आना चाहिए और एक आपको आना चाहिए मैटप्लॉटलिब, ओके। ये है डेटा एनालिटिक्स, राइट, ये चीज़ ओके। वैसे शुभम लक्सकर जो इस क्लास में बैठा हुआ है वो भी फॉस्ट के साथ एक इंटर्नशिप कर रहा है, उसमें हम लोग मैटप्लॉटलिब को यूज ना करके हम डैश को यूज कर रहे हैं। सो ही इज यूजिंग डैश, okay, so he's into 1 month internship actually। so guys that was there। now data analytics के बाद अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है तो जो लाइब्रेरी आपको सबसे ज्यादा काम में आती है वो आती है साइकिट लर्न, राइट। दैट इज योर लाइब्रेरी, जिसको हम लोग SK लर्न के नाम से भी जानते हैं। किसी को डीप लर्निंग करना है तो कौन सी लाइब्रेरी है, केरास है, ओके, टेंसरफ्लो है, पाइटॉर्च है,
MX नेट है, बहुत सारी हैं, कोई लॉट ऑफ आर देयर। हाँ, अगर किसी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग करनी है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिहाज से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक तो गूगल का डीप माइंड है, उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है, राइट, डीप माइंड फ्रॉम गूगल। और एक आप जो है ओपन एआई, जो एक कंपनी है ओपन एआई, राइट, उसके दो टूल आते हैं, एक आता है ओपन एआई जिम, राइट, सो एक तो जिम आता है उसका टूल, और एक आता है यूनिवर्स, यू नो। सो जिम क्या है? जिम एक एक टूल किट है, ठीक है। जिम क्या है गाइस? जिम इज अ टूल किट, राइट। सो let me talk about the gym now. So gym is a toolkit, guys, and what is there in the gym? A toolkit for developing reinforcement learning, algorithms, right? A toolkit, right? Toolkit for developing, just so a toolkit for developing, developing RL algorithms. ओके गाइस, ये हमारे जिम का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हम क्या करेंगे आज? आज हम इस जिम का यूज करने वाले हैं, इस लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं। टूल किट का मतलब लाइब्रेरी से समझे ना, दिस इज द लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, एक तरह से ये है। तो हम क्या करेंगे आज? अपनी आरएल वर्ल्ड को समझने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए हम दो चीजें आज करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं ओपन एआई जिम को यूज करूंगा। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स भी हैं और सिंपल एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। टू स्टार्ट विद हम एक काम करेंगे, एक एनवायरनमेंट को यहां से आज लेंगे। सो विल गेट a simple environment from this, right? So guys, today we are going to use a environment from the gym, और उस एनवायरनमेंट के लिए हम ऑब्वियसली एक एजेंट डेवलप करेंगे जो इस एनवायरनमेंट में काम करेगा, और उस एनवायरनमेंट में उसको कुछ काम करना है, और काम क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी आएगी। सो गाइस, सबसे पहले तो ये है कि हम जिम को यूज करने वाले हैं। उस जिम में बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं। हम जिस एनवायरनमेंट को यूज करेंगे उसको कहते हैं गाइस, एक तरह से मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज हैं एनवायरनमेंट की। जिस कैटेगरी को आज हम छेड़ने वाले हैं वो कहलाता है ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, गाइस, ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अब ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। देखो, जैसे कि चेस का गेम है, राइट, ये भी तो ग्रिड वर्ल्ड ही है। वहां पे आपको पता है कि ये चेस है, राइट। अब यहाँ पे फिलहाल हो फॉर एग्जाम्पल, या तो आप इधर जा सकते हो, या इधर जा सकते हो, या इधर जा सकते हो, या इधर जा सकते हो। ऊंट है तो टेढ़ा भी जा सकता है, सो दिस इज अ ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, राइट। या फिर आपने कई बार वो लाइन फॉलोअर रोबोट्स वगैरह के बारे में सुना होगा, राइट। टिक टैक टो गेम भी इसी तरीके का है, राइट। सो गाइस, लाइन फॉलोअर रोबोट्स होते हैं, वो सिंपली एक सीधी लाइन में चलते हैं, और फिर जब उनको एक्शन बोलते हैं ना कि भाई तू लेफ्ट हो जा या राइट हो जा, तो फिर वो इधर चला जाएगा या इधर। सो ये भी एक तरह से गिल्ड वर्ल्ड है। फॉर एग्जांपल, रोबोट आपके यहाँ पे है और आपको यहाँ पहुंचाना है उसे, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे से चले जाओ, ऐसे चले गए, या फिर ऐसे चले जाओ, ऐसे चले गए, या फिर यूं जाकर के यूं चले गए, या फिर यूं जाकर के यूं चले गए। बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो इस तरीके की ये ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट है। इस ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट में से भी जिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को हम यूज करेंगे उसका नाम है फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट। फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट, मैं एक करके सब चीजें बताऊंगा आपको कि ये फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट क्या है। जैसा कि समझ गए होंगे, फ्रोजन लेक की मतलब सर्दियों का टाइम है और एक झील जमी हुई है, राइट। और उस झील में क्या खतरा है, कहाँ खतरा नहीं है, कहाँ पे हम सेफ माने जब हम उस झील के ऊपर चल रहे हैं और हमें एक जो लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचना है, राइट। तो कैसे हम जा सकते हैं, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे फेल हो जाएंगे, कहाँ पे हम सक्सेसफुली पार कर लेंगे अपने ऑब्स्टिकल्स को, उसी को हम फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट कह रहे हैं गाइस। नाउ
फ्यूचर में भी ये काफी काम आने वाला है। सो सबसे पहले तो गाइज क्या हो गया, वी आर गोइंग टू यूज जिम, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हम उस जिम में से जिस एनवायरनमेंट को आज यूज करेंगे वो एक ग्रिड वर्ल्ड ग्रिड वर्ल्ड कैटेगरी का है। आपने कंप्यूटर पर माइंड स्वीपर भी खेला होगा गाइज, वो भी एक तरह से ग्रिड का ही एग्जांपल है, राइट। सो गाइज आज हम उस कैटेगरी में से फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट को निकाल के लेने वाले हैं, राइट। सो और अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या कहानी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ गाइज। हम देखें यहाँ पे क्या है आज हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम जिम को इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि भाई कोई भी लाइब्रेरी तो यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंपोर्ट द जिम। ओके, सो गाइस you have to import the gym. Gym is already installed, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, राइट। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा हम फ्रोजन लेक के बारे में थोड़ा सा राइट देख लेते हैं कि फ्रोजन लेक में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रोजन लेक को कि कैसा है फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट, राइट। सो फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट ग्रिड लाइक एनवायरनमेंट है गाइस, दिस इज अ ग्रिड लाइक एनवायरनमेंट। सो हियर you have this frozen lake environment guys। इसमें guys आपके पास इस तरीके का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास है, राइट। और ये ग्रिड्स हैं, एक ग्रिड ये रही, दूसरी ग्रिड, ये ग्रिड्स हैं गाइस, राइट। दूसरा ये इनकी काउंटिंग हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 6, then 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, then 14, and then 15. Okay, guys. And now in this frozen lake environment, guys, agent has always to start from top left position. तो agent हमेशा कहाँ से start करेगा? इस top left position से ही start करेगा, 0 से। तो गाइज यहाँ से स्टार्टिंग है। सो यहाँ की वजह मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम वेयर इट हैज टू स्टार्ट। गाइज ये यहाँ से स्टार्ट है, ओके। और गाइज इसको क्या करना है, इसको काम ये करना है कि इसको यहाँ पहुंचना है। एजेंट को कहाँ पहुंचना है गाइज? इस 15 नंबर ब्लॉक में पहुंचना है। तो ये है उसका गोल। तो कोई भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो मेन पर्पस है उसमें ये है कि एजेंट ऐसे एक्शंस ले जिससे कि वो गोल को अचीव कर पाए, राइट। तो ये तो हो गया गोल और ये हो गया उसका स्टार्ट। ओके गाइज, अब क्योंकि लेक जमी हुई है, राइट, तो ये इसकी एक तरह से आप देखेंगे वो एट ए टाइम एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। तो ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक्स, बेसिकली ये सब स्टेट हैं इसकी उस फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट की, राइट। सो इट्स अ फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट गाइस, frozen lake environment. Here you see guys, this is our frozen lake environment, right? Now guys, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट है, राइट, ये इसका गोल है। अब दूसरा क्या है, इस फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में ये 5 नंबर की, ये 7 नंबर की, ये 11 नंबर की और ये 12 नंबर की, राइट। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। यहां पे गाइस होल है। होल का मतलब अगर मेरा एजेंट इस स्टेट में आ गया तो उसका डूबना तय है। सो अगर इस स्टेट में पहुंच गया तो तय है, इस स्टेट में पहुंच गया तो तय उसकी डूबने वाला है। तो ऐसी ये स्टेट है होल। तो अगर आप एक तरह से देखो गाइस तो इसमें स्टार्टिंग स्टेट तो है 1। कितनी स्टार्टिंग स्टेट है हमारे इस एनवायरनमेंट में? 1। और वो भी कौन सी? 0, राइट, जो आपको वहां दिखाई दे रही है। टर्मिनल स्टेट्स कितनी है इसकी? टर्मिनल स्टेट का मतलब है अगर वहां पे पहुंच गए तो गेम खत्म। तो टर्मिनल स्टेट कितनी है? एक टर्मिनल स्टेट तो ये, अगर मेरा एजेंट यहां पहुंच गया तो भी खत्म, 7 में पहुंच गया तो भी खत्म, 11 में पहुंच गया तो भी खत्म, 12 में पहुंच गया तो भी खत्म और 15 में पहुंच गया तो भी खत्म। खत्म तो वहां पे भी होना है। सो हाउ मेनी टर्मिनल स्टेट्स वी हैव गाइस? वी हैव 5।
we have 7, we have 11, we have 12 and we have 15. हाँ, एक अलग बात है कि अगर इस स्टेट में 5 में या 7 में या 11 में या 12 में मेरा एजेंट पहुंचा है तो वहां पे उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? उसको रिवॉर्ड मिलेगा 0, क्योंकि वो कहानी खत्म हो चुकी है उसकी, और इसका मतलब वो गेम लूज कर चुका है। गेम खत्म हो गया ना उसका। तो गेम खत्म क्यों हो गया? क्योंकि भैया वो होल में पहुंच गया, खतरे में पहुंच गया था, खतरे में पहुंचते ही वो मर गया तो उसको रिवॉर्ड तो 0 मिलेगा, रिवॉर्ड 0 मिलेगा, लेकिन गेम भी तो खत्म हो गया साथ में, राइट? तो टर्मिनल स्टेट का मतलब है उस स्टेट में पहुंचने के बाद गेम ओवर, राइट? So guys, this is lose, this is lose, this is lose and this is lose. Only one state where we can count this agent as a winner, ये है हमारी 15। अगर वो गोल तक सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो यहाँ पर रिवॉर्ड कितना मिलेगा उसको गाइज? सो हियर ही गेट्स द रिवॉर्ड 1। ओके गाइज, एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है, बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो जैसे कि हमने बोला कि भैया एजेंट ऑलवेज स्टार्ट्स एट टॉप लेफ्ट पोजीशन, और उसका गोल क्या है? इसका गोल है टू रीच द बॉटम राइट पोजीशन ऑफ द ग्रिड। 0 से स्टार्ट करना और 15 पर पहुंचना। देयर आर 4 गोल्स इन द फिक्स सेल्स। आपको पता है कि 4 होल हैं वहां पे, राइट? और अगर एजेंट उन होल्स में पहुंच गया तो हमारा एपिसोड खत्म है। एपिसोड का मतलब उसकी जो जर्नी थी, वो जो गेम खेल रहा था, दैट एपिसोड इज ओवर एंड रिवार्ड ऑब्टेन्ड इज 0, राइट? इफ द एजेंट रीचेस द डेस्टिनेशन कौन सा है? गोल, राइट? देन उसको क्या अवार्ड मिलेगा? 1 मिलेगा, लेकिन एपिसोड तो उसमें भी खत्म होना ही है, राइट? तो एपिसोड, राइट? एपिसोड कहते हैं मतलब एक पूरा सीक्वेंस चलना, आपने स्टार्ट से किया और जब तक आपका गेम टर्मिनेट नहीं हो जाए तब तक वो एक्शन लिए जा रहा है, उसको कहते हैं एपिसोड। और वो जो एक एक करके एक्शन ले रहा है उनको कहते हैं एपिसोडिक एक्शंस या एपिसोडिक इवेंट्स। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास ये चीज है। ओके, नाउ अब आप इस चीज को समझिए। मैंने लास्ट टाइम कुछ डेफिनेशंस आपको दी थी, इसके हिसाब से हम देखते हैं कि यार इसके हिसाब से एजेंट के पास क्या क्या एक्शन स्पेस है। गाइस, एजेंट का एक्शन स्पेस क्या क्या है? एक्शन स्पेस का मतलब है कि वो पॉसिबल एक्शंस क्या क्या ले सकता है। सो अगर आप देखो तो एजेंट 4 ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है किसी भी स्टेट में खड़ा हो, भले वो ये एक स्टार्टिंग स्टेट है, ये एक गोल स्टेट है, ये स्टेट जो है हमारी होल वाली है। सो ये टर्मिनल स्टेट, 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 राइट? वो किसी भी स्टेट में खड़ा होकर के सिर्फ 4 ही एक्शन ले सकता है। या तो वो ऊपर की तरफ चला जाए, अप चला जाए, या फिर वो डाउन चला जाए, राइट? या फिर वो लेफ्ट चला जाए, या फिर वो राइट चला जाए। किसी भी अगर जगह वो खड़ा है तो 4 ही पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं। उन पॉसिबल एक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेस कहते हैं, क्योंकि एजेंट किसी भी टाइम पर इन एक्शन स्पेस में से ही कोई एक एक्शन को लेगा, इससे बाहर वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। किसी भी टाइम पे या तो वो अप जाएगा, किसी टाइम पे या तो डाउन जाएगा, या लेफ्ट जाएगा, या राइट जाएगा। इसके बियॉन्ड तो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और इस लेक के अराउंड सब जगह क्या है? फेंसिंग हो रखी है। सो देयर इज अ फेंसिंग, तो इससे बाहर वो जाएगा नहीं, राइट? अगर वो एजेंट ट्राइज टू मूव आउट ऑफ द ग्रिड वर्ल्ड, राइट, अगर वो एजेंट बाहर जाने की कोशिश भी करता है तो इट विल बाउंस बैक, राइट? वो उसी जगह वापस आएगा जहां से उसने बाहर जाने की कोशिश की। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी स्टेज 2 में हूं, राइट, अब इसमें तो 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, मैं यहाँ चला जाऊं, या यहाँ चला जाऊं, या यहाँ चला जाऊं। इधर जाने की कोशिश करूंगा तो फेंसिंग से टकराऊंगा, फेंस से टकराऊंगा तो वापस कहाँ जाऊंगा? उसी स्टेट में पहुंच जाऊंगा, राइट? 2 के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, राइट? सो गाइज, एक चीज तो ये है। दूसरा, क्योंकि लेक जमी हुई है, द लेक इज फ्रोजन गाइज, राइट, तो ये स्लिपरी भी है। याद रखिएगा गाइज, ये क्या है? रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा? स्लिप भी हो रहा होगा एजेंट, राइट? एजेंट अगर चलेगा तो कोशिश तो कर रहा है वो यहां से इधर जाने की, बट हो सकता है स्लिप होने की वजह से वो नेक्स्ट स्टेट में पहुंच ही नहीं पाए, राइट? तो हर उसके साथ कुछ प्रोबेबिलिटी है कि भाई लेट्स से 33% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्लिप करेगा, राइट?
टू द राइट और टू द लेफ्ट, जब भी वो कुछ एक्शन लेने जा रहा है, राइट, और वो एक्शन उसको लेना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लिपरी नेचर ऑफ द दिस वर्ल्ड, राइट, ये फ्रोजन लेक का स्लिपरी नेचर है, तो कई बार वो चलते टाइम पर आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है, चलते टाइम पर स्लिप हो जाएगा, तो स्लिप होने की वजह से वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो अपना काम जो उसको करना था वो नहीं कर पाए, राइट। तो एक तो ये हो गया, राइट। अब वो किस स्टेट में आएगा, किस स्टेट में नहीं आएगा, उसके लिए हमने लास्ट टाइम, आपको ध्यान है, कुछ प्रोबेबिलिटीज डिफाइन की थी, उसको हम डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन से। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे इस पर काफी लंबा डिस्कशन करूंगा कि ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, राइट। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की कुछ हमने बात की थी, आपको ध्यान है, जब मैंने मार्कोव मॉडल आपको समझाने की कोशिश की थी। सो गाइस, राइट, ये चीज यहाँ पे। सो गाइस, मुझे बताइए कि क्या फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट सबको क्लियर है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि ये ग्रिड लाइक एनवायरनमेंट है। टोटल इसमें 16 स्टेट्स हैं, 0 से लेकर के 15, कितनी हो गई, 16 स्टेट्स हो गई। उन स्टेट में से भी स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, 0 वाली। गोल कौन सा है, 15 है। इसका मतलब एजेंट को स्टार्ट 0 से करना है और कहां तक पहुंचना है, 15 तक। उस रास्ते में उसको कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और पर्टिकुलरली स्टेट नंबर 5, 7, 11 और 12 खतरनाक वाली, खतरे वाली स्टेट है, जहां पे वो डूब जाएगा। इसका मतलब गोल को अचीव करने से पहले ही उसकी कहानी खत्म है, वो टर्मिनल स्टेट। तो ये टर्मिनल स्टेट है, राइट। तो टर्मिनल स्टेट कौन सी होगी, 5 हो गया, 7, 11 एंड 12, वहां पे तो उसको फेलियर मिला इसलिए टर्मिनल हो गया। एक और टर्मिनल स्टेट है 15, वहां पे उसको सक्सेस मिल रहा है, राइट। तो रिवॉर्ड उसको सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, 1, जब वो सक्सेसफुली, इसका मतलब एक तरह से मान लो कि 15 चॉकलेट है, वहां पे 15 वाली स्टेट में चॉकलेट रखी हुई है, राइट। तो चॉकलेट अगर उसको चाहिए तो उसको फाइनली 15 स्टेट पे पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कभी भी चॉकलेट नहीं मिलने वाली है, राइट। एक चीज तो ये हुई। सो गाइज, अब हम लोग अगर वापस यहाँ पे आए, राइट, अगर हम यहाँ पे वापस पहुंचे तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इंपोर्ट उसको तो इंपोर्ट कर लिया, और एक और चीज है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो नाउ गाइज, अब हम दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। हम अब इस जिम में तो बहुत सारे एनवायरनमेंट है ना, जिम में वी हैव लॉट मेनी एनवायरनमेंट्स। हम किस एनवायरनमेंट को यूज करने में इंटरेस्टेड हैं, हम जिस एनवायरनमेंट को यूज करने में इंटरेस्टेड हैं उसका नाम है फ्रोजन लेक, राइट। फ्रोजन लेक वाला जो गेम है, उसी एनवायरनमेंट को तो हमें कॉपी करना है या यूज करना है। तो हम जो है आगे जिम को बताना पड़ेगा कि भैया मुझे कौन सा एनवायरनमेंट यूज करना है, तेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, बट मुझे कौन सा यूज करना है, आई विल टेल यू। सो गाइज, हम जिस एनवायरनमेंट को जिम में से लेके आने वाले हैं उसको कैसे लिखेंगे, जिम डॉट make. Now I'm going to create a new environment. And which environment you are talking about, guys? Frozen lake, right? So this is frozen lake, guys, and version 0. So this is how you specify this. So guys, can you see? यहाँ पे हमें environment तो मिल गया है फ्रोजन लेक, लेकिन इस environment को किसी रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना। अभी तो मैंने कर तो दिया, लेकिन मैं इसको आगे कैसे एक्सेस करूंगा कोड में, इसका ना तो मैंने किसी वेरिएबल को असाइन किया है ना किसी इसको असाइन किया है। तो एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट स्टेटमेंट ऐसे लिख देते हैं, एनवायरनमेंट इज इक्वल टू जिम डॉट मेक। सो गाइज, नाउ दिस इज योर एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट में भी क्या है, फ्रोजन लेक वाला एनवायरनमेंट है, राइट। नाउ अगर हमें इस एनवायरनमेंट में खेल कूद करनी है, इसके बारे में जानना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक और काम करने वाले हैं। मैं इस एनवायरनमेंट को रीसेट कर दूंगा। रीसेट का मतलब 0 से स्टार्ट करना है, पहले चाहे कुछ भी रहा हो, नहीं हो कुछ नहीं हो, एक तरह से होता है ना कि यार रीसेट कर दो गेम को, सो दिस इज हाउ यू रीसेट द एनवायरनमेंट। इसका मतलब एजेंट अब कहां पे है, एजेंट ओब्वियसली स्टेट 0 में बैठा हुआ है, ओके। ये कहानी है, ओके। नाउ अब हम देखें तो सही एनवायरनमेंट है कैसा हमारा। Can we see the environment? Yes, we can see the environment. So let's see how we can, see the environment. Environment dot render, guys. एक function है environment dot render. Can you see, guys? This is, guys. Can you see? This is your environment. देख रहे हैं यहाँ पे ये S लिखा हुआ है जो रेड मार्क्ड है, इसका मतलब फिलहाल एजेंट यहाँ पे है। और S क्यों बोला है इस स्टेट को? इस स्टेट को S इसलिए बोला है भाइयों
क्योंकि जो है आपका स्टार्टिंग यहां से हो रहा है। सो एस इज स्टार्टिंग स्टेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, जी क्यों बोला है इसको? जी इसलिए बोला है क्योंकि जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर आप यहाँ पे देखेंगे एफ 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 क्या इंडिकेट कर रहा है? एफ इंडिकेट कर रहा है फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस है, इसका मतलब क्या है? सेफ पोजीशन है, राइट? इट्स अ सेफ पोजीशन। एंड गाइज एच दिख रहा है कहीं पे आपको? ये एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है और एक एच यहाँ पे, 4 एच दिख रहे हैं। एच इंडिकेट्स अ होल गाइज, यू नो, एच इंडिकेट्स द होल। सो गाइज इस तरीके का हम यहाँ पे अब देखेंगे। सो दिस इज योर राइट। सो ये आप यहाँ पे यू नो आप देख सकते हैं। और गाइज ये जो हाईलाइट रेड में हो रहा है वो बता रहा है कि अभी फिलहाल हमारे एजेंट की पोजीशन क्या है वो। सो दिस यू नो दिस हाईलाइटेड कैरेक्टर मींस the highlighted character is indicating the position of the agent, राइट? ये फिलहाल पोजीशन ऑफ द एजेंट क्या है। अभी तो एजेंट को कुछ बोला ही नहीं है कि तू आगे जा या पीछे जा या क्या कर या क्या नहीं कर, अभी तो कुछ नहीं बोला है ना, अभी तो सिंपली स्टार्टिंग है। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। ओके, तो ये चीज यहाँ पे होगी गाइस। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो गाइस मैंने आपको 4 चीजों के बारे में बताया है। कौन कौन सी? एक तो एक्शन स्पेस हम जानने लग गए हैं। व्हाट इज द एक्शन स्पेस? अप डाउन लेफ्ट राइट इज द एक्शन स्पेस, राइट? एक्शन स्पेस का मतलब है कि भैया इसी कलेक्शन में से उसे कोई ना कोई एक्शन लेना है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो ये तो हो गया एस, गाइस दिस इज एस, राइट? ये फ्रोजन है, ये फ्रोजन है, ये फ्रोजन है, ये भी फ्रोजन है, ये भी फ्रोजन है, ये भी फ्रोजन है, ये भी फ्रोजन, ये भी फ्रोजन, ये भी फ्रोजन, ये भी फ्रोजन, ये जी, राइट? ये हो गया एच, ये एच, दिस इज ऑल्सो एच एंड दिस इज ऑल्सो एच, राइट? तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया, राइट? सो यहाँ पे so Lakshay is saying moving from S to F, did the agent will get a reward or not? As of now in this environment Lakshay, उसको reward तभी मिलेगा जब वो फाइनली गोल तक पहुंचेगा। लक्ष्य, राइट? अभी अभी फिलहाल हम ऐसा समझ रहे हैं, राइट? विशाल, अभी इस फ्रोजन एनवायरनमेंट में ये चेंज नहीं होने वाला है गाइज। ये जो अभी मैंने आपको यू नो सेटिंग्स बता दी हैं कि कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी गोल है, कौन सा फ्रोजन है, कौन सा होल है, ये फिक्स रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ये रैंडम नहीं है गाइज। अभी आप यू नो स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी ये रैंडम नहीं है, राइट? दिस इज ऑल फिक्स्ड एज ऑफ नाउ। एक गेम वो भी हो सकता है कि जिसमें रैंडम नहीं है, राइट? सो यू नो इस तरीके की चीज है। सो दैट इज देयर गाइज। यहाँ पे ये समझ में आया, राइट? सो दैट इज देयर। अगर गाइज एक और चीज जान लीजिए, किसी को और इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ये आपका एक होमवर्क है गाइज। सभी लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ओपन एआई के बारे में थोड़ा सा और समझ के आना है, राइट? तो थोड़ा सा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को समझ के आएंगे। ये एक्चुअली मैंने आपको एक लिंक अभी अभी शेयर किया है गाइज, gym.openai.com/docs। ओके, इस लिंक पे आप सभी लोग जाएंगे और वहां पे थोड़ा सा जिम के बारे में, उसके क्या क्या पॉसिबल एनवायरनमेंट्स हैं, उन सब के बारे में मुझे आप बताएंगे, राइट? यू नो दैट वुड बी देयर गाइज। इज दैट क्लियर? राइट? या सो ये चीज यहाँ पे सभी के लिए है कि आपको एज ए आज मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे दिया, ठीक है? अब हमें गाइस क्या करना है? फॉर दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपलेस्ट एजेंट। हम एक छोटा सा एजेंट करने वाले यू नो बनाने वाले हैं। एंड यू नो उस और वो एजेंट फिलहाल क्या करेगा? कुछ रैंडम एक्शंस लेगा गाइस। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं ये कह रहा हूँ हम एक ऐसा कुछ यू नो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा स्मार्ट एजेंट नहीं बना रहे हैं। अभी हम एक डम एजेंट बनाएंगे। डम एजेंट मतलब उसको ज्यादा अभी ज्ञान नहीं है चीजों का, सिर्फ उसको बोलाएंगे कि यार तू कुछ एक्शन ले, होता ना जैसे कि चल तू यू नो तू क्या करेगा, रैंडम कुछ स्टेट ले। सो रैंडम लेफ्ट राइट डाउन कुछ करेगा, राइट? तो देखते हैं वो क्या करेगा और कैसे करेगा, उसको समझ लेते हैं, राइट? नाउ
आपको फिलहाल पता है कि एजेंट सिर्फ चार ही एक्शन ले सकता है गाइस, एजेंट सिर्फ चार ही एक्शन ले सकता है। तो हम एक ये जान सकते हैं कि क्या क्या एक्शंस अलाउड किए हैं उसने। कैन वी डू दैट गाइस? सो एक काम करें, एनवायरमेंट डॉट एक्शन स्पेस, एक काम देखते हैं क्या इसके पास। ओके, वी हैव दिस गाइस। ओके, एक बार देखते हैं कि क्या बोलता है ये। ओके, सो गाइस कैन यू सी, ये कह रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में एजेंट सिर्फ चार ही एक्शन ले सकता है। 4 डिस्क्रीट एक्शंस आर देयर। 4 डिस्क्रीट। वाई 4? चार ही क्यों बता रहा है ये डिस्क्रीट? क्योंकि चार इसलिए बता रहा है काके, क्योंकि या तो अप जा सकता है, या डाउन, या लेफ्ट, या राइट। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है यूनिक। मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा हुआ आपने। डिस्क्रीट का मतलब है, तो इसका मतलब चार पॉसिबल एक्शंस ही वो ले सकता है। ओके, अब क्या ये फंक्शन भी अलाउड कर रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। अगर नो, इट्स गिविंग एरर। ओके, क्या हम उस एक्शन स्पेस में से कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं? अगर आपको कोई भी इस एक्शन उसमें से लेना है तो आपको देखो गाइज यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। सो गाइज कैन यू सी, मतलब मैं इसको रैंडम ये कुछ देगा मुझे। देखो, कभी 2 दे रहा है, 0 दे रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 2। वो क्या है ये 0 1 2 3 का मतलब क्या है? 0 1 2 3 का मतलब बहुत सिंपल सा है गाइज। 0 का मतलब है एक तरह से कौन सा एक्शन मानेंगे हम उसको? 0 का मतलब है हमारे पास आई थिंक, लेट मी चेक। हम आगे भी इसको चेक कर लेंगे वैसे। वी कैन डू दैट, बट it has to be like I'm just saying कि 0 का मतलब लेफ्ट है या राइट है, क्या है? आई थिंक 0 का मतलब अप है, 1 का मतलब डाउन है, 2 का मतलब लेफ्ट है, और 3 का मतलब राइट है। वी हैव दैट मैपिंग, वो डिक्शनरी में एक मैपिंग आएगी, वो हम आगे देख लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से हम एनवायरनमेंट में हैं। एनवायरनमेंट में 4 एक्शंस पॉसिबल हैं। उन 4 एक्शंस में से कोई भी एक एक्शन आपको अगर करना है एजेंट को, राइट, तो रैंडम बोला जा रहा है अभी कि तुझे कुछ भी एक एक्शन लेना है, राइट। उसको ये नहीं बोल रहे कि तू सिर्फ लेफ्ट ही जा या तू राइट ही जा, सिर्फ उसको ये बोला जा रहा है कि तुझे एक्शन लेना है। तो हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं? अ सैंपल मेथड यूज कर रहे हैं। सो गाइस, ये हमारी चीज यहाँ पे है। ओके, सो एक चीज तो यहाँ पे ये हुई हमारी। सो गाइस, हमने एनवायरनमेंट को इंपोर्ट कर लिया है, हमने एनवायरनमेंट को रीसेट कर दिया है, हमने एनवायरनमेंट को रेंडर कर दिया है, और अब आगे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स सी। अब हम एक काम करते हैं गाइस, लेट्स डू वन थिंग। हम कुछ 10 एक्शंस लेंगे सीक्वेंस में, एक के बाद एक के बाद एक। 10 डिफरेंट एक्शंस लेने वाला मेरा एजेंट। और वो एजेंट जो एक्शन लेगा, ऑब्वियसली 4 एक्शन में से एक एक्शन लेगा, या तो आप, या डाउन, या लेफ्ट, या राइट, ऐसे ही जाएगा, राइट। सो अगर मुझे सिर्फ 10 एक्शन लेने हैं और उन 10 एक्शन में देखना है कि क्या वो सक्सेसफुली गोल तक पहुंचा, राइट। अभी इसमें कोई रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं आई है गाइज। अभी सिर्फ हम एजेंट को बोल रहे हैं कि तुझे रैंडम एक्शन लेने। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का तो मतलब ये आ जाएगा, तब हम ये देखेंगे कि भाई आगे का कौन सा एक्शन लेना है, सो दैट मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। अभी फिलहाल हम उसको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यार तुझे एक्शन लेना है। तो अगर मुझे सिर्फ 10 ही एक्शन लेने हैं गाइज, तो क्या मुझे लूप का यूज करना चाहिए? यस, ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ लूप तो लगाना पड़ेगा। सो गाइज, आई कैन से दैट फॉर each t in range 10। समझ में आया गाइस? इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ऐसा करते हैं, बता देंगे कि कौन सा स्टेप वो कर रहा है। तो 10 स्टेप चलना है उसको। तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे कि भैया तू टाइम स्टेप, यहाँ पे कौन क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है ना, या फॉर्मेट किया मैंने, और क्या पास कर देता हूँ? वैल्यू ऑफ द टी। गाइस कैन यू सी? So this way if I run this code, can you see guys? ये पहली स्टेप होगी उसकी, ये दूसरी स्टेप होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर आठवीं, और फिर 9वीं। सो टोटल 10 स्टेप्स वो लेगा। बट इन 10 स्टेप्स में मैंने अभी ये नहीं बताया कि उसको स्टेप लेनी भी या नहीं लेनी है, राइट।
तो स्टेप लेने के साथ साथ हम ये देख लेते हैं, उसमें उसको रेंडर करा देते हैं एनवायरनमेंट को। हर स्टेप के बाद हम क्या करा देंगे, हर स्टेप के बाद हम दिखा देंगे कि हमारा एजेंट कहाँ है। तो अभी आप देख रहे होंगे, यू नो गाइस, कैन यू सी, अभी मेरा एजेंट यहीं है, टाइम स्टेप में भी यहीं है, यहाँ पे भी यहीं है, यहाँ पे भी यहीं है, हर स्टेट में अभी आपको दिख रहा है। इसका मतलब अभी वो मूव कर ही नहीं रहा है, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, राइट? सो इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर गाइस, सो दिस इज हाउ यू सी। ओके, उसके बाद एक काम करते हैं, अब उसको थोड़ा सा कोड ऐड कर देते हैं जहां पे वो क्या करेगा, कुछ एक्शन लेगा। अब एजेंट को मैं बोलने वाला हूं कि भैया तू ऐसा खड़ा मत रहे, निकल यहां से। अब तू निकलेगा कैसे वो तू जाने, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कि नाउ यार लेट्स टेक सम एक्शन। सो गाइस नाउ इट हैज टू टेक सम एक्शन। सो ए एक वेरिएबल लिया है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा गाइस। सो एनवायरनमेंट डॉट एक्शन स्पेस, एक्शन स्पेस का मतलब होता है वो कलेक्शन ऑफ एक्शंस जो अलाउड हैं, एंड देन उसमें से अलाउड में से मैंने एक एक्शन को सैंपल किया, रैंडम सैंपलिंग है गाइस, कुछ भी आ जाएगा उठ के, यू नो, ये हो गया। और गाइस अब मैं इस एक्शन में जो एक तरह से कुछ चीजें मिलेंगी मुझे, जब मैं एक एक्शन लेता हूं तो काफी सारी चीजें मिलती हैं, उनको मैं बताऊंगा यहाँ पे। सो गाइस लेट मी कैन वी डू सम, एक काम करके देखते हैं, प्रिंट एक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? दैट इज देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, प्रिंट एक करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो गाइस अब आप देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं। सो एक काम करते हैं, पूरा उसको रीसेट कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट को कर लिया, मैंने उसको रीसेट कर दिया, राइट? मैंने रेंडर कर दिया एनवायरनमेंट को, मेरे एजेंट की लोकेशन आ गई गाइस। अब मैं एक लूप चलाने वाला हूँ 10 बार, और अब देखते हैं जरा क्या हो रहा है, राइट? गाइस कैन यू सी, जब हम यहाँ पे फिलहाल हैं तो मेरा ये मिला, राइट? और उसने, यू नो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कुछ यू नो आगे कुछ स्टेप ले रहा है, लेकिन अभी भी वो यहीं पे दिख रहा है आपको। कैन यू सी गाइस, यहाँ पे यू नो इसका मतलब क्या है, अभी वो यू नो कुछ उसने किया नहीं है। कैन यू सी गाइस, दिस 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 ये सारी कहानी अभी फिलहाल यहाँ पे हुई है, राइट? सो एक और आगे चलेंगे। अब उसने एक्शन तो अभी लिया है, बट हमें अभी एक्चुअली एक्शन का एक कलेक्शन तो मिल गया है हमें। सो वी हैव कलेक्टेड द सैंपल एक्शन हियर कि कौन सा एक्शन आएगा, बट अभी तक हमने उसको लिया नहीं है गाइस, यू नो, वी हैव नॉट टेकन इट येट। सो उसको लेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, हम कुछ यहाँ पे एक काम करके देखते हैं। वी शुड हैव सम स्टेपिंग नाउ। सो गाइस कैन यू सी स्टेप एंड देन ए। ओके, सो लेट्स सी गाइस, क्या अब ये कुछ एक्शन लेगा? सो फिलहाल हमने यहाँ तक सिंपली एक्शन की सैम्पलिंग की थी, एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। अब हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश में कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डॉट स्टेप। सो गाइस लेट्स सी। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं क्या हुआ है। कैन यू सी गाइस, यहाँ हमारे पास है, राइट? ये स्टेप 0 है, फिर उसके बाद उसने अप जाने की कोशिश की। कैन यू सी गाइस, अप जाने की कोशिश की है उसने। अब तो कहाँ जाएगा? अप जाने का मतलब है वो दीवार से सर टकराएगा अपना, क्योंकि फेंसिंग है वहां, तो आगे ऑप्शन ही नहीं है आपका, राइट? तो अभी भी वो यहाँ बचा हुआ है। फिर वो गाइस कुछ राइट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो क्या राइट उसको मिला है? नहीं, उसने चेंज किया स्टेट, उसने एक्शन लेने की कोशिश की, राइट? लेकिन अभी उसको फिलहाल वो कहाँ पहुंचा है? इस स्टेट से, देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यहाँ से फिर इसमें आया है, इससे फिर यहाँ पहुंचा है, फिर वो यहाँ पहुंचा है, फिर वो यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही है। ओके, सो अभी तक गोल तक नहीं पहुंच पाए। एक काम करते हैं, दोबारा इसको करते हैं। सो लेट्स रन दिस अगेन, लेट्स रीसेट द एनवायरनमेंट। आप देखेंगे हर बार रैंडम हो रहा है ये काम, राइट? दिस इज कंप्लीटली रैंडम एवरी टाइम। सो गाइस लेट्स रन द अगेन नाउ। ओके, सो कैन यू सी गाइस, यहाँ पे टाइम स्टेप है, फिर कुछ लेफ्ट, फिर कुछ नेक्स्ट चला है,
फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ कहानी हुई है उसकी, फिर ये यहाँ पे पहुंचा इस बार, फिर वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ है, राइट, फिर यहाँ है, राइट. सो एवरी टाइम इट इज बेसिकली तो ये हमारा एक एपिसोड चल रहा है, एपिसोड ऑफ 10 स्टेप्स गाइज, एपिसोड ऑफ 10 स्टेप इज गोइंग ऑन हियर. एंड गाइज कैन यू सी नाउ, फिर से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ अभी इस स्टेट में ही चल रहा है, राइट. सो ये पूरा का पूरा रैंडम सीक्वेंस है गाइज, इट्स अ कम्प्लीटली रैंडम बिहेवियर. क्यों? क्योंकि हम सिंपली उसको बोल रहे हैं कि रैंडमली तो कोई भी एक्शन ले ले, so you take any actions randomly. So this is how so let me reset the environment again guys, and we'll see. So that is there. So this is there guys, can you see guys, here वो हमारे पास पूरा एक ये है. तो एक काम करेंगे हम, रीसेट करते हैं एनवायरनमेंट को, फिर से ये करते हैं. ओके नाउ गाइस एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग. ओके यहाँ पे थोड़ा सा कोड में कुछ अब ये देखते हैं कि जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, राइट, व्हेनेवर वी आर टेकिंग सम एक्शन, वो क्या क्या दे रहा है. तो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं हमें 4 चीजें मिलेंगी गाइस, व्हेनेवर वी आर टेकिंग एक्शन हमें 4 चीजें मिलेंगी. तो क्या क्या मिलेगी जरा एक बार देख लेते हैं. O B R कॉमा डन कॉमा अंडरस्कोर, ऐसा कुछ करके मैं बता रहा हूँ अभी इससे एक्चुअली क्या करने वाले हैं. और एक तरह से इफ डन, राइट, इफ डन इज इक्वल टू ट्रू, राइट गाइस. सो इफ डन इज इक्वल टू ट्रू हम बोलेंगे so just a minute, I don't need to write true. If done I can directly say print, and I can say episode terminated, right. This is how, and close it, and then we can break it. So that is there. So guys here you see, and better I can take these 2 statements here only. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ guys, I will write the entire code. Environment dot reset, you have this. Okay, so this is your reset guys, environment dot reset. So here we go guys. Okay, तो यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं गाइस. देखते हैं इसमें प्रिंट में क्या क्या है. OB R डन, और इन 4 चीजों को प्रिंट कराते हैं गाइस. लेट्स सी गाइस व्हाट इज हैपनिंग. सो यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है. ये देखेंगे यहाँ पे गाइस, ये जब हम प्रिंट करवा रहे हैं गाइस, OB R डन, सो ये 4 चीजें हैं हमारे पास. कैन यू सी गाइस, हियर यू सी, राइट. बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. ये उसके रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर गोल अचीव होगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा गाइस, और गोल अचीव अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा. और ये उस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी है, करंट स्टेट से इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी. सो गाइस कैन यू सी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 0.33, राइट. सो गाइस दिस इज द टाइम स्टैम्प. ये पहला एक्शन लिया, उस एक्शन से हमें कुछ मिला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रिवॉर्ड है, क्या नहीं है. सो गाइस रिवॉर्ड 0 मिल रहा है फिलहाल, राइट. फिर वो बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. फिर वो बता रहा है नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट. नेक्स्ट स्टेट का एक्शन लेना गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, एक्शन लेना नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जरूरी नहीं है आप हमेशा उस स्टेट में चले ही जाओगे, क्योंकि उस स्टेट में जाने की एक प्रोबेबिलिटी है, राइट. और जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि एनवायरनमेंट स्लिपरी है तो कई बार आप स्टेट में जाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है कि आप स्टेट चेंज नहीं कर पाओ, फाइनली आप वहीं के वहीं रह जाओ. गाइज मुझे रैंडम एक्शन लिया मैंने, मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अब लिया अप, मैंने अप जाने का एक्शन लिया है, लेकिन मैं अब जा थोड़ी पाऊंगा, मेरी स्टेट अभी भी वहीं की वही रहेगी. क्यों? क्योंकि आगे तो फेंस है और मैं उससे टकरा के वापस आने वाला हूँ. आई विल बाउंस बैक. Similarly, my intention is to move to the next state,
बट इट मे नॉट बी पॉसिबल कि मैं सक्सेसफुली इस स्टेट में चला जाऊं, बिकॉज एनवायरमेंट स्लिपरी है, तो कई बार कोशिश करने पर भी मैं वहां पे जाने में सफल नहीं हो पाऊं, राइट? सो गाइस हियर, ओके गाइस, यहाँ पे आप देखोगे गाइस, कैन यू सी यहाँ पे, कैन यू सी गाइस, यहाँ पे लास्ट जब हम टाइम स्टैम्प 3 पे हैं तो हमें ट्रू मिला है, राइट गाइस, राइट? हमें ट्रू मिला है। यस निशु, उसके बारे में बताऊंगा। गाइस कैन यू सी, अभी तक हमें उसका जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो गाइस यहाँ पे फॉल्स था रिवॉर्ड, मतलब जीरो, ये रिवॉर्ड जीरो, ये जीरो, ये रिवॉर्ड बेसिकली मतलब एक तरह से रिटर्न जिसको हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे गाइस कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कहने का मतलब इसका ये है कि वो किसी होल में जाके खत्म हो गया, राइट? वो जब एजेंट चल रहा है तो इट गॉट डाउन इन दैट होल, और होल में जाते ही क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया गेम हमारा, और गेम टर्मिनेट होते ही उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, और इसीलिए बोल रहा है कि एपिसोड टर्मिनेटेड गाइस। इसका मतलब आप पूरे 10 स्टेप्स ले ही नहीं पाए, उससे पहले ही एजेंट क्या हुआ, किसी होल में जाकर के गिर गया है, एंड दैट्स व्हाई वो टाइम स्टैम्प 3 के बाद आगे बढ़ा ही नहीं, उसके लिए गेम ओवर हो गया। गेम ओवर क्यों हो गया? क्योंकि वो किसी टर्मिनल स्टेट में जाके फंस गया, गोल तक नहीं पहुंच पाया था, टर्मिनल स्टेट में जाके फंस गया। मतलब या तो वो 5 में, या फिर 7 में, या फिर 8 में, या फिर 7 में, या 11 में, या 12, जो 4 स्टेट थी हमारी, उसमें जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी हमारा एजेंट बिल्कुल डम्ब है गाइस, राइट? और एजेंट क्या कर रहा है, रैंडमली सेलेक्टेड एक्शंस ले रहा है, राइट? इट मे कम टू अ गोल, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है, रैंडमली क्योंकि एक्शन ले रहा है। अब हमारा काम क्या है गाइस, हमारा काम ये कि हाउ कुड वी बिल्ड एन एजेंट दैट कैन टेक इंटेलिजेंट एक्शंस, राइट? हमें अब एक ऐसा एजेंट बनाना है गाइस जो क्या कर सके, इंटेलिजेंट एक्शंस ले, जो क्या कर सके, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सके, और फाइनली गोल को रीच कर सके। ऐसा काम करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। अभी तक रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो मैंने कुछ इसमें लगाई नहीं है, अब हम एजेंट को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ट्रेन करेंगे, उसको बताएंगे कि तुझे क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, सो दैट यू सक्सेसफुली अचीव द गोल। और गोल क्या है इस पर्टिकुलर गेम में, इस पूरे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में गोल है कि स्टेट 15 तक कैसे पहुंचेंगे। तो गाइस ये आज की हमारी कहानी है। मुझे चैट विंडो के थ्रू आप बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली हमने अभी तक क्या किया है, कि हमने कैसे जिम को इंपोर्ट किया, किससे हमने एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को पकड़ा, एनवायरनमेंट को रीसेट करना, रेंडर करना, उसमें से 10 डिफरेंट एक्शंस लिए हैं, और हर एक्शन पे कुछ ना कुछ हो रहा है। कई बार हम किसी स्टेट में पहुंच पा रहे हैं, कई बार स्टेट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई बार हम होल में फंस गए हैं, कई बार हम नहीं फंसे हैं, राइट? तो ये हमारे पास चीजें हैं समझने की। So guys, now let's discuss couple of more things around it, इसी रेफरेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए गाइस, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा गाइस, मैंने एक चर्चा की थी, that was MDP. What was that? It was Markov decision process, MDP। पॉइंट क्या था उसको समझने का, राइट? गाइज क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सिल्वेस्टर सर? नो सर। ओके, सो विशाल कुछ नेटवर्क में शायद तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम है। ओके, सो गाइज मैंने एमडीपी की चर्चा की थी, और उस एमडीपी में ये था
that almost all of the reinforcement learning problems can be framed as MDP. MDP क्या है? एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है और किसी भी reinforcement learning problem को राइट आप MDP की तरह represent कर सकते हो. You can represent that reinforcement learning problem as MDP. And guys, do you remember उस MDP में मैंने बेसिकली 5 चीजों का जिक्र किया था. There was a tuple of 5 items if you remember. What was those 5 items, guys? One was S, another was A, that was T, one was R, and that was one more, gamma if you remember this. This S is what, guys? A set of states. Set of states. आप मुझे बताओ गाइस कि हमारे फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? हाउ मेनी स्टेट्स, राइट? इस टी को कई बार पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं गाइस, वी रिप्रेजेंट इट इन पी. गाइस हमारे फ्रोजन लेक फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में कितनी स्टेट्स हैं गाइस? हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव? 0 to 15 अगर आपको ध्यान हो तो 0 to 15 का मतलब टोटल 16 स्टेट्स वी हैव. ओके, कैसे पता करें? चलते हैं कोड में, पता करेंगे वहां पे गाइस. ओके, सी टू नो दैट हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स वी हैव, इसके लिए हमारे पास एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमारा फ्रोजन एनवायरनमेंट है, फ्रोजन लेक. ऑब्जर्वेशन स्पेस, कैन यू सी गाइस? ऑब्जर्वेशन स्पेस, ऑब्जर्वेशन स्पेस, ऑब्जर्वेशन मतलब एक तरह से स्टेट ही है. Can you see guys, it is telling us that it has got 16 different states from 0 to 15 guys. तो क्या ये सबको क्लियर आया कि अगर हम मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के रेफरेंस में अगर बात करें तो जो फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट है उसमें 16 स्टेट्स हैं. तो S वहां पे क्या हो गया? तो वहां पे जो S है राइट कि हमारे पास टोटल 16 स्टेट्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है गाइस? 0. स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है? 0 है, राइट? तो टोटल स्टेट्स 0 से लेकर के 15 तक, 0 1 2 3 से लेकर के 15 तक, इस कलेक्शन को कहते हैं स्टेट स्पेस. स्टेट स्पेस क्यों बोला इसको? क्योंकि ये स्टेट्स ही हैं. एक स्टेट ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो टोटल 16 स्टेट्स हैं. इसको कहते हैं स्टेट स्पेस. और इसमें से भी मैंने गाइस आपको क्या बताया कि जो इनिशियल स्टेट है और स्टार्टिंग स्टेट है वो तो सिर्फ एक ही है, 0. तो इनिशियल तो 0 है. और टर्मिनल कितनी है गाइस? हाउ मेनी टर्मिनल वी हैव? तो टर्मिनल में एक तो 5, एक 7, एक 11, एक 12, ये तो वो है जहां पे होल है, और एक 15 वाली है जहां पे गोल है. क्योंकि किसी भी स्टेट में पहुंच गया इन 5 में से, मेरा गेम खत्म है. चाहे मैं विनर हूं चाहे लूजर, डजंट मैटर, पर गेम ओवर हो जाएगा, राइट? दैट इज देयर. ओके गाइस, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमडीपी के अंदर, वो कहलाती है मार्कव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं उसको? मार्कव प्रॉपर्टी. सो उस मार्कव प्रॉपर्टी को समझ लीजिए क्या होता है मार्कव प्रॉपर्टी. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मार्कव प्रॉपर्टी गाइस. व्हाट इज दैट? मार्कव प्रॉपर्टी इस बात को रेफर करती है कि फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट. गाइस मैं फिर से बता रहा हूं कि फ्यूचर स्टेट हमेशा और सिर्फ हमेशा करंट स्टेट पर डिपेंड करेगी, ना कि हिस्ट्री पर. मार्कव प्रॉपर्टी बताती है कि फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, राइट, नॉट द हिस्ट्री. प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट स्टेट गिवन द करंट स्टेट will be same as if you give it the entire history of interactions. पॉइंट क्या है इसका? पॉइंट ये है कि लेट्स से मैं अभी फिलहाल स्टेट 6 में हूं. मैं स्टेट 6 में कैसे पहुंचा? 0 1 2 3
या 0, 4, 5 में स्टेट 6 में कैसे पहुंचा, इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या होगी 6 से, वो सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि करंट स्टेट क्या है। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये चीज मुझे पता है चाहे नहीं पता है कि हिस्ट्री में 6 तक कैसे पहुंचे, ये चीज मुझे पता है चाहे नहीं पता है। मार्कोव प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेक्स्ट स्टेट सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट स्टेट से डिसाइड होगी, ना कि तुम्हारी हिस्ट्री से डिसाइड होने वाली है। गाइस, इज द मार्कोव प्रॉपर्टी क्लियर विद एवरीवन? दूसरे शब्दों में इसको कैसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि फ्यूचर और पास्ट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंडेंट है। पास्ट में क्या हुआ था किसी को लेना देना नहीं है, राइट? एक तरह से आप इसको ऐसे समझो, लोकेश में फिर से एक बार समझा देता हूं मार्कोव प्रॉपर्टी क्या है। मार्कोव प्रॉपर्टी ये है भाई कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और वो सेकेंड ईयर में है, फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है, नेक्स्ट स्टेट, वो सिर्फ इसी पे तो डिपेंडेंट है कि वो अभी फिलहाल सेकेंड ईयर में है। अब वो सेकेंड ईयर में कैसे पहुंचा, क्या उसने डिप्लोमा से एडमिशन लिया सो दैट फर्स्ट ईयर को स्किप किया उसने और वो सीधा सेकेंड ईयर में पहुंच गया, राइट? या फिर ये था कि कोई बच्चा 12th करके आया है, 12th करके वो फर्स्ट ईयर में पहुंचा है, फर्स्ट ईयर से फिर सेकेंड ईयर में पहुंचा, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है, राइट? या फिर ये कंडीशन हो गई कि वो बच्चा पहले से सेकेंड ईयर में था लेकिन फेल हो गया था तो अभी भी सेकेंड ईयर में है। किसी भी केस में मुझे नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि फिलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूं या नहीं हूं। इट डज नॉट मैटर कि मैं लास्ट ईयर फेल हुआ था, इट डज नॉट मैटर कि मैं लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में था, इट डज नॉट मैटर कि मैं डिप्लोमा से आया हूं। गाइस, इसी को मार्कोव प्रॉपर्टी कहते हैं। टेल मी, क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? लोकेश लाडना। ठीक है, सो मार्कोव प्रॉपर्टी का मतलब है द फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, नॉट द हिस्ट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट will be decided by the current state only, that's it, right? ये चीज है यहाँ पे, इसी को मार्कोव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब गाइज हम एक्शंस पे चलते हैं। तो एस तो उसमें हमारे पास एस तो मैंने समझा दिया आपको, एस एक्शन, प्रोबेबिलिटी या फिर इसको टी, और क्या था गाइज, आर और डिस्काउंट फैक्टर लैम्डा। ये 5 चीजें थी उसमें, राइट? गामा, नॉट लैम्डा, इट वाज गामा एक्चुअली, राइट? सो गाइज, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में पॉसिबल एक्शंस क्या क्या है गाइज। तो स्टेट का मैंने समझा दिया गाइज। स्टेट स्पेस हमारे क्या कहता है कि हमारे फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में टोटल 16 स्टेट्स हैं, 0 से लेकर के 15। कुछ स्टार्टिंग स्टेट हैं, कुछ टर्मिनल स्टेट हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्टेट हैं, राइट? अब हम बात करेंगे कि एमडीपी के हिसाब से उसमें ए क्या है। ए का मतलब है पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस। और गाइज, आपको पता है कौन कौन से पॉसिबल एक्शंस हैं? वी हैव अप, वी हैव डाउन, वी हैव राइट एंड वी हैव लेफ्ट। ये 4 ही एक्शंस हैं। इसका मतलब फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में ये हमारा एक्शन स्पेस है गाइज। दिस इज अवर एक्शन स्पेस, दिस इज द एक्शन स्पेस। तो अब एक्शन स्पेस को तो हम लोग जानते हैं, पहले भी यूज कर चुके हैं गाइस, राइट? सो हाउ मेनी डिस्क्रीट एक्शंस वी हैव? 4। सो एक और कोड लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे environment dot action space, right? And here you see guys, we have got 4 discrete actions. Okay, now एक और चीज समझ लीजिए,
अब हम तीसरी बात करेंगे, तीसरा जो हमारा पैरामीटर था मार्कअप डिसीजन प्रोसेस में गाइस, उसके बारे में बात करें, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, राइट। वो है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन में या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट। प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन फंक्शन, तो क्या क्या था उसमें, स्टेट, एक्शन, प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन, राइट, और आपका रिवॉर्ड और आपका गामा। ये एमडीबी के पार्ट हैं, तो इन दो की तो चर्चा कर चुके हैं हम। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या है यार ये, राइट। सो देखिए यहाँ पे ये जो टी है या पी है, इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन फंक्शन, ओके। सो दैट इज देयर। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या चीज है उसको समझना बड़ा जरूरी है। ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब है द इन विच स्टेट द एजेंट विल अराइव, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं गाइस, विच स्टेट, right, which state the agent will arrive, okay, will arrive in, it is decided by, right, it is decided by transition function guys, it is decided by transition function। हमारा एजेंट किस स्टेट में आएगा ये कौन डिसीजन लेगा, transition function will take that decision, right? Now अब हम बात करेंगे कि depending on the environment, guys, very important concept, depending on the environment agent can select the action deterministically और stochastically। guys मैं एक चीज वापस बोल रहा हूं, actions दो तरीके से लिए जा सकते हैं, एक्शन तो लूंगा, राइट, और एक्शन लेने की जो कि कौन सा एक्शन लूंगा जिससे कि मेरी स्टेट में बदलाव होगी, कौन सी स्टेट आएगी इसके बाद, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। और अब हम जब एक्शन लेने जा रहे हैं तो दो तरीके से एक्शन लिए जा सकते हैं, और इस ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है। एक कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक गाइस, डिटर्मिनिस्टिक, और एक कहलाता है स्टोकेस्टिक गाइस, स्टोकेस्टिकली। स्टोकेस्टिकली का मतलब होता है रैंडम, ये तो हो गया रैंडम और ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक। सो गाइस ट्रांजिशन फंक्शंस की चर्चा कर रहे हैं, और जिसका हमने क्या यूज जाना कि ट्रांजिशन फंक्शन ही डिसाइड करते हैं कि एजेंट कौन सी स्टेट में आएगा, विच स्टेट द एजेंट विल अराइव इन इज डिसाइडेड बाय द ट्रांजिशन फंक्शन, and depending on the environment agent can select actions either deterministically or stochastically। उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है और स्टोकेस्टिकली का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब तो ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा फ्रोजन लेक एनवायरमेंट है, राइट, तो अभी तो क्या है, ओरिजिनली वो स्टोकेस्टिक एनवायरमेंट है, क्योंकि हम जब कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो कई बार स्लिप होने की वजह से हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और हम किसी दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, राइट। अगर हम अपने फ्रोजन लेक एनवायरमेंट को कुछ ऐसा कर दें कि उस पर स्लीपिंग हो ही नहीं रही है, उस पर आदमी फिसलता ही नहीं है, तब वो एनवायरमेंट कैसा बन जाएगा, वो डिटर्मिनिस्टिक मोड का एनवायरमेंट बन जाएगा। सो गाइस अगर स्लिपिंग नहीं है, वो स्लिपरी नहीं रहा है, तो बन चुका है डिटर्मिनिस्टिक। इन रियलिटी बहुत ऐसे एनवायरमेंट नहीं मिलेंगे, रियलिटी में तो ऐसा होगा फ्रोजन लेक एनवायरमेंट, रियलिटी में तो वो उसमें स्लिपेज होगा ही, लोग गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, बर्फ आपने देखा होगा, कुछ आपने देखे भी होगा, कौन से होते हैं वो आइस होम कहते हैं उनको, क्या कहते हैं वो, अंदर बर्फ जमी हुई होती है और उसमें आप चलते हो तो फिसल भी जाते हो, राइट। सो गाइज अब मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज करने वाला हूं, सो सब लोग ध्यान दीजिए। अभी तक जो चीज मैंने आपको करके बताई थी इस कोड के बेस पर, उसमें सिंपल क्लैरिटी ये है कि ये एनवायरमेंट स्लिपरी है, बाय डिफॉल्ट ये एनवायरमेंट स्लिपरी है। बट अब मैं जिम से वापस से जो एनवायरमेंट फैच करने वाला हूं, फ्रोजन लेक एनवायरमेंट ही फैच करूंगा, नया नहीं लेने वाला हूं। लेकिन इस बार मैं जिम को बता दूंगा कि यार इस बार मेरा जो एनवायरमेंट तू बना के देना, उस एनवायरमेंट को स्लिपरी मत बनाना। अब मुझे बताना पड़ेगा कि स्लिपरी कैसे नहीं बनाना है। तो अब देखिए गाइस मैं अब क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस कोड, एनवायरमेंट इज इक्वल टू जिम डॉट एनवायरमेंट गाइस,
और कौन सा एनवायरनमेंट मुझे चाहिए बताओ जरा, फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट। तो कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूं ये फ्रोजन अ लेक गाइस वर्जन 0 इफ यू रिमेंबर, ये तो हमारे एनवायरनमेंट का नाम हो गया, ये तो मुझे चाहिए। एक और पैरामीटर यहां पे दे देता हूं जिसको बोलते हैं इज स्लिपरी। गाइस क्या बोला इसको, इज स्लिपरी। तो ये हमारे पास हो गया इज स्लिपरी इज इक्वल टू फॉल्स। देख लेते हैं ये चीज हमारे काम आ रही है नहीं आ रही है। तो इज स्लिपरी SLIPPERY। so let's see guys. So Jim has no and oh, so it is what make. I'm sorry guys, it has to be make, right? So Jim dot make. So देखें क्या एरर आई है गाइस, चेक कर लें। What's some issue with our okay, we are wrong here, frozen lake. Okay, so guys I have some typo here, I think now it should be fine. Good guys, so now अब हमारा environment बन गया है guys, frozen lake environment हमारा फिर से बन गया है। थैंक यू दुष्यंत। और इस बार हमने सिंपली उसको ये बोला कि देख भाई इस बार मेरे एनवायरनमेंट को स्लिपरी मत बनाना, राइट? अगर अब ये स्लिपरी नहीं बना है तो अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ट्रांजिशन फंक्शन कैसा बना है। मुझे मालूम है कि इस केस में भी स्टेट तो 16 ही रहने वाली है, एक्शन तो 4 ही रहने वाले हैं, राइट? अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरा ट्रांजिशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग कह रहे थे वो कैसी है, राइट? तो अब जरा एक बार आगे चलते हैं गाइस, हम लोग बोलेंगे एनवायरमेंट द डॉट एनवायरमेंट डॉट पी। पी देखते हैं क्या है। ओह वी गॉट इट। सो गाइस पी क्या है इसको अपन देख लेते हैं। पी स्टैंड एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। ये क्या मतलब उसको समझ लीजिए। ये जो हम एनवायरमेंट डॉट एनवायरमेंट ये कर रहे हैं, एनवायरमेंट तो वो एनवायरमेंट जो हमने बनाया है, और ये nv.p क्या कर रहा है, ये nv.p returns all the states guys, right? It returns all the states where each state contains a dictionary guys, can you see? हर स्टेट के अंदर एक डिक्शनरी है, can you see guys? This is our here guys, that is this one from here to here, right? थोड़ा सा सेलेक्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, बट आप जान सकते हैं ये यहां से लेकर यहां तक एक डिक्शनरी है हर स्टेट की, राइट? सो दिस रिटर्न्स ऑल द स्टेट्स वेयर ईच स्टेट, अब इसमें किसकी बात हो रही है, स्टेट 0 की बात हो रही है। नेक्स्ट किस स्टेट की बात होगी, स्टेट 1 की बात होगी। गाइस कैन यू सी, यहाँ पे हम बात करेंगे, देखें जरा दिस गाइस, ये स्टेट 0 की बात हो रही है, ये स्टेट 1 की बात हो रही है, स्टेट 2 की बात हो रही है, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 सारी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन मुझे आ गई है यहाँ पे गाइस। अब हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा लिखा हुआ है, हर स्टेट के अंदर 4-4 एंट्रीज हैं। अगर आप देखो तो गाइस हर स्टेट के अंदर 4-4 एंट्रीज हैं, कैन यू सी? ये 4 एंट्रीज हैं 0 के करस्पॉन्डिंग, ये 4 एंट्रीज हैं स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग, ये 4 एंट्रीज हैं गाइस स्टेट 2 की। तो हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग कुछ एंट्रीज हैं, वो क्या हैं, और वो एंट्रीज एक तरह से डिक्शनरी के फॉर्मेट में जैसा आपको दिख रहा है, राइट? वेयर ईच स्टेट कंटेन्स अ डिक्शनरी, और वो डिक्शनरी में एक मैपिंग है पॉसिबल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट? पॉसिबल एक्शंस क्या क्या है, हर पॉसिबल एक्शन को नंबर दे दिया गया कि पॉसिबल एक्शन 0, पॉसिबल एक्शन 1, पॉसिबल एक्शन 2, पॉसिबल एक्शन 3। 0, 1, 2, 3 का मतलब क्या है गाइस? 0, 1, 2, 3 का मतलब है, सबको पता है कि हमारे पास कितने एक्शंस हैं, 4। कौन कौन से? अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो अप को तो रिप्रेजेंट कर दिया है 0 से, डाउन को रिप्रेजेंट कर दिया है 1 से, राइट को रिप्रेजेंट कर दिया है 2 से, और 3 को लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर दिया 3 से। तो हर स्टेट में 4 ही एक्शन पॉसिबल हैं, और वो 4 एंट्रीज ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहली चीज तो ये है गाइस, ओके। उसके बाद और चीज समझ लीजिए गाइस, यहाँ पे क्या है, राइट? अब इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट, कि हर स्टेट से क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, तो वो तो उसने बता दिया।
अब हर पॉसिबल एक्शन में, मतलब हर एक्शन के अंदर भी एक लिस्ट दी हुई है गाइस, बहुत समझ लीजिए इसको मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये नंबर तो बता रहा है कि हम कौन सी स्टेट में हैं और वहां से क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो 4 ही एक्शन लिए जा सकते हैं फ्रोजन लेक में। 4 एक्शन में भी जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे अप को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन को, राइट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और लेफ्ट इज रिप्रेजेंटेड एज 3। ओके गाइस, एक चीज तो ये हुई। अब आप और समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, अब हर एक्शन के आगे भी एक टपल लिखा हुआ, कैन यू सी गाइस, टपल है हर एक्शन के आगे, ये देखिए, और हर टपल में 4 चीजें छिपी हुई हैं। सब लोग समझिए इसमें क्या है, हर टपल में, हर टपल में ये चीज छिपी हुई है कि कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू दैट स्टेट, ये तो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और नेक्स्ट स्टेट लिखा हुआ है, और रिवॉर्ड लिखा हुआ है, और एक तरह से गेम टर्मिनेट होगा या नहीं होगा वो लिखा हुआ है। टर्मिनेट तभी होगा जब ट्रू लिखा हुआ है। सब जगह देखो, बहुत जगह फॉल्स आ रहा है गाइज, आप यहां पे देखोगे, यहां पे ट्रू लिखा आ रहा है, कई जगह ट्रू है। हम लास्ट में चलते हैं तो ट्रू का मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। कैन यू सी गाइज, मैं स्टेट 15 में पहुंच गया हूं। स्टेट 15 में पहुंचने के बाद तो मैं कोई भी एक्शन लूं, क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो विनर ही हूं ना। तो इसका मतलब मेरा तो गेम टर्मिनेट है। तो देखिए, मैं स्टेट 15 से चाहे डाउन लूं, चाहे अप लूं, चाहे राइट लूं, चाहे लेफ्ट लूं, राइट गाइस, आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक्शन लेने की। आप 15 में हैं तो 15 में एक्शन ले रहे हो तो 15 में ही हो, आप किसी भी स्टेट में आप जाओगे नहीं दूसरी जगह, राइट। मैं ऑलरेडी 15 में पहुंच चुका हूं, वहां पे कुछ एक्शन लेता हूं, अप डाउन राइट लेफ्ट कुछ भी, ऑलरेडी मैं विनर हूं गाइस, राइट। तो आप देखेंगे हर स्टेट में मुझे यही बता रहा है कि 15 वाला बंदा 15 के अंदर ही है, राइट। एंड गाइस, कैन यू सी, दिस इज true, this is also true, this is also true, and this is also a true. Okay, that is there. Okay, now guys, आप देखो रिवॉर्ड 1 कहां पे मिल रहा है। कैन यू सी गाइस, मैं 15 स्टेट में हूं और 15 में घूम रहा हूं तो रिवॉर्ड 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम 15 में आए कैसे, रिवॉर्ड तो उस पे मिलना है ना। तो अगर मैं 14 स्टेट में हूं और वहां पे जाऊं और 14 स्टेट से 15 में पहुंचू, गाइस कैन यू सी, अभी मैं 14 स्टेट में हूं, 14 से मैं 13 में जा सकता हूं। कैन यू सी गाइस, 14 से मैं 14 में भी रह सकता हूं, मैं 14 से 15 में जा सकता हूं, 14 से 10 में जा सकता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि ये 4 कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं? लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। मैं 14 से बात कर लेता हूं यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा कि 14 से क्या क्या पॉसिबल। आप खुद ही बता दोगे मुझे कि मैं 14 से कहां कहां जा सकता हूँ। गाइस कैन यू सी, दिस इज अवर दिस, ओके। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। आप बताओ मैं 14 से कहां जा सकता हूं? मैं 14 से अप करके डाउन 10 में जा सकता हूं, तो मैं 14 पे हूं गाइस, मैं 10 पे चला गया। मैं डाउन जाऊंगा तो कहां पे जा सकता हूं? डाउन में कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? अभी फिलहाल कुछ नहीं है। मैं दीवार से टकराऊंगा बेसिकली, राइट। जा तो सकता हूं पर मैं दीवार से टकराऊंगा। मैं राइट चलूंगा तो 15 में पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट चलूंगा तो 13 में पहुंच जाऊंगा। आप मुझे बताओ मेरी विनर स्टेट कौन सी है? मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा? ऐसा एक्शन लेने पर रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा एक्शन लेने पर रिवॉर्ड मिलेगा, या ऐसा एक्शन लेने पे, या ऐसा पे। अगर मैं इधर चलूंगा तो रिवॉर्ड 0 है, इधर चलूंगा तो रिवॉर्ड 0 है, इधर चलूंगा तो रिवॉर्ड 0 है। ओनली यहाँ पे रिवॉर्ड 1 है। यहाँ पे मेरा गेम टर्मिनेट नहीं होगा तो फॉल्स है, यहाँ पे भी टर्मिनेट नहीं होगा तो फॉल्स है, यहाँ पे भी टर्मिनेट नहीं होगा तो फॉल्स है। मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा ट्रू आएगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है गाइस, जरा देख लीजिए। 14 स्टेट से मैं 13 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 14 से 14 में जाने की। 14 से 14 में क्यों रह गया हूँ गाइस? आप बता सकते हैं मैं 14 से 14 में क्यों रह गया हूँ? क्यों? क्योंकि जब मैं इस दीवार से टकराया तो वापस कहाँ चला गया? 14 में ही चला गया, राइट। मैं वापस अगर दीवार से टक्कर मार रहा हूं तो एजेंट कहां पहुंचता है? वापस उसी स्टेट में पहुंच गया है। तो या तो मैं 10 में जा सकता हूं, या 13 में, या 14 में, या 15 में गाइस, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे दे रखा है
और ये देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखी है गाइस, आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है। ये 1 इसलिए है क्योंकि इस बार हमारा एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक है, स्लिपरी नहीं है। तो अगर हम इंटेंशनली जाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उस स्टेट में पहुंच जाएंगे। कैन यू सी गाइस व्हाट आई एम टेलिंग यू? अब ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई है गाइस, कैन यू सी दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1। इसका मतलब इफ आई टेक एक्शन टू move from 14 to reach to 13, definitely I will move to 13, right guys? ऐसे ही मैं 14 में हूं और मैं फेंसिंग से टकराता हूं तो डेफिनेटली मैं कहां पे पहुंचूंगा, वापस उसी स्टेट में पहुंच जाऊंगा, आगे तो बंद है ना रास्ता। ऐसे 14 से मैं 15 में जाना चाहूं तो डेफिनेटली चला जाऊंगा, क्योंकि अब एनवायरमेंट तो स्लिपरी बना ही नहीं, मैंने तो एनवायरमेंट ही ऐसा बना लिया है जिसमें हमेशा जो एक्शन लेना चाहूं वो पॉसिबल है, राइट? लेकिन ट्रू सिर्फ इस केस में मिल रहा है जहां पे मैं गोल को अचीव कर पा रहा हूं, बाकी सब जगह ओके गाइज यहां पे भी ट्रू है। ऐसा क्यों, बता सकता है क्यों क्यों मिला है मुझे ट्रू? मैं कौन सी स्टेट में हूं? मैं स्टेट 12 में हूं। 12 स्टेट का मतलब क्या है? वेयर वी आर गाइज, दिस इज द 12th स्टेट। कैन यू सी गाइज, दिस इज माई 12th स्टेट। 12 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? 12 तो वैसे ही भैया तुम्हारी क्या है, होल वाली स्टेट है। 12 में तो वैसे ही तुम्हारी कहानी खत्म है, आगे कुछ होगा ही नहीं, राइट? सो 12 का मतलब तो ये है। सो यहाँ पे देखेंगे हम 12 में है, राइट? देखिए सारी जगह कहानी खत्म है, 12 में आते ही आगे क्या है, आगे कब जाना ही नहीं होगा, हर जगह 12 से मैं सिर्फ 12 में ही पहुंच रहा हूं। कैन यू सी गाइस, फ्रॉम एवरीवेयर आई एम जस्ट, मगर मैं 12 से कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं वहीं की वहीं, मैं निकल ही नहीं सकता ना वहां से, मैं तो फंस चुका हूं, मेरा तो मरना तय है अब, राइट? सो ट्रू ट्रू ट्रू। इस तरीके से टर्मिनल स्टेट आ गई। 11 भी टर्मिनल स्टेट है गाइस। कैन यू सी, 10 से जब मैं 11 पे जा रहा हूं तो ट्रू दे रहा है मुझे, 10 से 11 पे जा रहा हूं तो ट्रू क्यों दे रहा है? कैन समवन टेल मी गाइस, 10 से जब मैं 11 पे जा रहा हूं तो व्हाई इट इज सो? 10 से 11 पे जाने पर, क्योंकि 11 भी तो टर्मिनल स्टेट है, राइट? तो इस तरीके से मैंने जब स्लिपरी एनवायरनमेंट बनाए हुए बिना ये सब काम किया तो मैंने अपना ट्रांजिशन फंक्शन प्रिंट कराने की कोशिश की। गाइस देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। मैंने यहां पे आपके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 16 यूनिक स्टेट हैं, 4 यूनिक एक्शंस हैं, और ये गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये हमारे ट्रांजिशन फंक्शन की मैपिंग है गाइस। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मैप, राइट? ये हमें बताता है कि कौन सी स्टेट में आप आओगे, राइट गाइस? ये एक तरह से ये चीज यहां पे हुई है, ओके? अब एक काम करें गाइस, एक काम कर लें। सो शुभम कह रहा सर, आर दीज टर्मिनल स्टेट फिक्स फॉर दिस एनवायरनमेंट? यस शुभम, ये टर्मिनल स्टेट फिक्स हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, ओके? तो एक काम करते हैं गाइस, क्या अब हम अपने एजेंट को बता सकते हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, जिससे कि वो सक्सेसफुली उस स्टेट में पहुंच जाए, गोल वाली में? गाइस क्या हम अपने, राइट, निशु प्रोबेबिलिटी 1 इसलिए हो गई है क्योंकि अब स्लिपरी नहीं रहा। तो अगर मुझे, राइट, मुझे अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने का मैंने मन बना लिया है तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब स्लिपरी तो रहा नहीं है। तो अगर मुझे कोई बोले कि निशु प्लीज मूव फ्रॉम 9 to 10, तो देयर वुड बी नो इश्यू, इट इज 100% श्योर दैट यू विल मूव फ्रॉम 9 to 10। इफ आई से मूव 9 to 13, देन यू विल मूव 9 to 13, राइट? बिकॉज अब स्लिपरी तो है नहीं। एक बार होता है ना कि घर पे पानी पड़ा है और निशु बीच में फंसा हुआ है, मम्मी ने बोला बेटा तू वो सामान लाके दे दे। निशु ने बहुत कोशिश की पर वो हाथ नहीं लगा, उससे पहले फिसल के चला गया, वो तो दूसरे कोने में जाके पड़ा, जाना इधर था लेकिन चला उधर गया। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एकदम एनवायरनमेंट एकदम सूखा है, तो मम्मी की बात माननी है और सामान दे देंगे उठा के। निशु, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, पॉलिसी की बात लक्ष्य अभी बाद में करेंगे, मैं अभी पॉलिसी पे पहुंचा नहीं हूं, मैं पॉलिसी पे पहुंचूंगा। भाई मेरे रुक जाओ, अभी एक एक करके बताने को सारी चीजें। मैं आज थोड़ा मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें क्लियर कर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझ लीजिए पहले। लक्ष्य, अब हम एक काम करते हैं गाइस, क्या अब हम अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि यार तू ये एक्शन ले? कैन वी टेल? सो हम एक प्लान बना सकते हैं, वी कैन मेक अ प्लान गाइस, सो दैट वी विन द गेम।
गाइस एक काम करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं गाइस कि वी आर इन द स्टार्टिंग स्टेट 0 है, तो हम लोग यहां से पहले ऐसे चलें, राइट, फिर राइट चलें, फिर हम डाउन चलें, फिर हम डाउन चलें, फिर हम डाउन चलें, फिर हम राइट चलें। गाइस तो क्या हम पहुंच पाएंगे गोल तक? क्या मानते हो गाइस? क्या पॉसिबल है ऐसा? तो क्या क्या हो गया हमारा? राइट, फिर से राइट, फिर हमारा क्या हुआ गाइस? डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर कौन सा? राइट। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा तो हम सक्सेसफुली वहां तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड करते हैं। चलिए कोड करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक ए कोड। मैं उसके बाद खत्म कर दूंगा गाइस। मैं इस कोड के बाद आई विल फिनिश टुडे फॉर टुडे। सो गाइस लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम थोड़ा सा कोड लिख रहे हैं। मुझे पता है एक्शंस क्या क्या है गाइस, सबको मालूम है एक्शंस गाइस। सो एक्शंस की मैपिंग कर देते हैं, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। आपको पता है लेफ्ट का मतलब क्या है गाइस? हम कुछ भी मान लेते हैं कि लेफ्ट मतलब एक तरह से हो गया हमारा लेट्स से 0 फॉर एग्जांपल, राइट। डाउन let's say 1, okay guys, okay, and what is that? Right, guys, right 2 से represent कर देंगे। so और up का मतलब guys, you know 3। so this is how you say guys, okay। so guys ये हमारे actions हो गए। तो जब हम what is that, why it's wrong, so I need to have a comma here guys, okay। सो गाइज ये मेरे एक्शंस हो गए, ठीक है। मैं लेफ्ट राइट कुछ भी करूंगा। अब आप मुझे बताइए व्हाट कैन बी माय गुड प्लान, व्हाट कैन बी माय गुड प्लान। सो आप मुझे बताएं मैं क्या क्या एक्शन लूं गुड प्लान के हिसाब से। गुड प्लान के हिसाब से मेरे एक्शंस कुछ ऐसे रहेंगे गाइज। आई नीड टू रन ट्वाइस, आई नीड टू रन ट्वाइस राइट, 2 बार राइट लेना है ना गाइज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं 2 बार राइट लूंगा, यानी सी गाइस 2 बार राइट हो गया। फिर उसके बाद क्या है गाइस, 3 बार डाउन, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, राइट। 3 बार मैं डाउन चलूंगा, राइट। तो 3 बार मैं चला डाउन। सो गाइस दिस इज 3 टाइम्स डाउन। और लास्ट में मुझे क्या जाना है गाइस? राइट जाना है, राइट। सो मुझे लास्ट में राइट जाना है, तभी जाकर के मैं 0 से 15 तक। गाइस समझ में आया मैंने 2 राइट क्यों बोला है? मैंने 2 राइट इसलिए बोला है, राइट राइट, फिर 3 डाउन क्यों बोला है? डाउन डाउन डाउन, और फिर एक और राइट, राइट। सो ये हमारा गुड प्लान हो गया। तो मतलब एक तरह से ये तो मैं पॉसिबल एक्शंस ले सकता हूं, उनसे ही मैंने एक गुड प्लान डिजाइन कर लिया है। 2 2 1 1 1 2, यू आर विशाल, यू आर राइट, राइट। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अब एक काम करते हैं गाइस, राइट। हमारा एनवायरनमेंट तो पहले से बना हुआ ही है, उसको रीसेट वीसेट और कर देते हैं सो दैट कोई दिक्कत ही ना रहे। सो ये हमारे पास environment dot reset हो गया गाइस। दिस इज माय रीसेट ऑफ द एनवायरनमेंट गाइस। रेंडर भी कर देंगे एक बार, राइट। ये हो गया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लेट्स सी गाइस, एनवायरनमेंट क्या, अच्छा मैंने वहां लिया नहीं क्या? एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से चलते हैं, बन गया। और अब इधर आ जाते हैं, क्या कहानी। सो ओके, व्हाट इज सो environment reset, इसका मतलब मैं लाइन नंबर यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ओके, आई हैव हियर प्रॉब्लम। ओके गाइस, दैट इज देयर। सो गाइस ये हमारा रीसेट हो गया। एनवायरनमेंट भी इस बार स्लिपरी नहीं है गाइस, सूखा माहौल है एकदम ही। अब हम एक्शन लेते हैं गाइस। सो हाउ आई कैन टेक द एक्शन। सो अब मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ कि भैया फॉर ईच ए, गाइस मेरे एक्शन कहाँ से आएंगे? इससे आएंगे, यहाँ से गुड प्लान से आएंगे। अब तो मैं एक उठाऊंगा वहां से एक्शन और डाल दूंगा, मेरे एजेंट को बोल दूंगा। सो फॉर ईच ए इन गुड प्लान, फॉर ईच ए इन गुड प्लान गाइस, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुझे न्यू स्टेट पे किस पे जाना है। सो गाइस न्यू स्टेट, ठीक है। रिवॉर्ड डन
एंड इन्फो। गाइज ये 4 चीजें ही तो थी वहां से। अब तुम ट्रांजिशन फंक्शन में देखो तो हमें यही चीजें तो मिल रही हैं जब भी हम कोई एक्शन ले रहे हैं। जब भी मैं कोई एक्शन ले रहा हूं तो मुझे एक तो न्यू स्टेट मिलेगी, एक मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, एक मुझे ट्रू फॉल्स मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन, काइंड ऑफ दैट, जब भी मैं एक्शन ले रहा हूं। तो ये चीज मेरे पास यहाँ है गाइज। और अब मैं एक्शन लेने वाला हूं तो क्या करते हैं, उसके लिए स्टेप लेते हैं। और कहां से लेंगे गाइज, हम अपने एक्शंस में से लेंगे। सो ये मैपिंग एक तरह से पाइथन आप सब लोग जानते हो, एक तरह से ये क्या हो गया है, ये एक्शन नाम की एक मेरे पास डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में अगर मैं कोई भी की पास करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और की क्या है, या तो की राइट है या लेफ्ट है या डाउन है या अप है, ये की है। तो अब हम लोग देख लेते हैं गाइज। और हर स्टेट के बाद मैं क्या करता हूं, मैं एनवायरनमेंट को रेंडर करा दूंगा। सो एक काम कर लूंगा, मैं रेंडर कर देता हूं। सो गाइज सी, और अगर हम पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली तो लूप को ब्रेक कर देंगे। सो गाइज दिस इज देयर। ओके, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे मालूम है हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आप लिखो ही। गाइज कैन यू सी नाउ, स्लिपरी एनवायरनमेंट नहीं है तो राइट का मतलब राइट ही है। देख लीजिए गाइज, राइट का मतलब राइट है। सो वी टेक द फर्स्ट, ये स्टार्टिंग है हमारा। अब मैंने राइट लिया तो राइट चला गया, फिर से मैंने राइट लिया तो फिर मैं राइट चला गया, फिर से मैंने डाउन किया तो मैं डाउन चला गया, फिर से मैंने डाउन किया तो डाउन चला गया, फिर से मैं डाउन कर रहा हूं तो डाउन चला गया, अब मैं राइट चला गया तो अब चला गया। अब फाइनली ये हमारी स्टेट पहुंच गई। गाइस ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा प्लान बना लिया था, राइट, जिसमें मुझे मालूम है कि दिस इज हाउ आई कैन रीच। अभी भी इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, अभी भी मैंने उसको पहले से ही प्री प्लान करके भेजा है कि तू कुछ मत सोचना समझना, तुझे तो सिर्फ इस रास्ते पे चलना है। इसका मतलब पहले से उसको इन्फॉर्मेशन है कि किस रास्ते पे जाना है। बट रीइंफोर्स लर्निंग में अब हम उसको ये भी नहीं बताएंगे कि तुझे किस रास्ते पे जाना है, हम सिर्फ उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर रिवॉर्ड पॉजिटिव मिलेगा तो वो सेक्शन को उस हिसाब से डील करेगा, अगर उसको रिवॉर्ड 0 मिलेगा तो उसको इस हिसाब से, तो ट्रायल एंड एरर जिसको हम लोग आगे से कहेंगे, वो चीज यहाँ पे फाइनली गाइस कैन यू सी this is how we have achieved starting from state 0 to start reaching to a goal. So guys, अब क्यों हुआ, लास्ट टाइम जब हम ये देख रहे थे यार, वो बोलता कुछ है और होता कुछ है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माहौल क्या था, स्लिपरी था। वो बोलता था यार कि आपको अब जाना है, पर वो तो कहीं है ही नहीं, अप ही नहीं पहुंचा। बोला राइट, लेकिन वो राइट नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे इश्यूज थे बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अब समझ में आएगा ये 0.33 क्यों है। क्योंकि अब ये प्रोबेबिलिटी 33 इसलिए है क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट स्लिपरी है, इसीलिए सिर्फ नेक्स्ट स्टेट में जाने का जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 33% है। अगर मैं जाने का इंटेंशन बनाऊं तो सिर्फ 33% चांस है कि मैं उस स्टेट में रियली में पहुंच पाऊंगा। 66% केस में मैं उस स्टेट में पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब मैंने एनवायरनमेंट को एकदम सूखा बना दिया है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, इसलिए जो भी मैं एक्शन लेना चाह रहा हूं वो क्लियर कट लिया जा रहा है। क्या अब ये माहौल समझ में आया गाइस कि ऐसा बदलाव क्यों हुआ, कहां पे हमारे पास रियलिटी में तो एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, लेकिन अब हमारे साथ ये सिचुएशन है। गाइस मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना चाहता था, इसलिए मुझे आज ये जिम का यूज करना पड़ा, जहां पे आप इस चीजों को अब देख सकते हैं कि अब स्टेट का मतलब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि एक्शन का मतलब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या डिसाइड कर रही है कि मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, राइट। और अब मैं एजेंट को कैसे गाइड कर सकता हूं, मैं किस एनवायरनमेंट को कैसे डील करूंगा आने वाले टाइम में। अब मैं गाइज आपको बताऊंगा, ये तो गाइज डिटर्मिनिस्टिक माहौल है। अब हम आगे बात करेंगे स्टोकेस्टिक की, कि स्टोकेस्टिक लेना हो तो फिर हमें प्रोबेबिलिटीज कैसे मिलेंगी और वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या कहानी है या नहीं है, राइट। तब हम बात करेंगे और फिर हम फाइनली रिवॉर्ड और उन सबको क्लोज करेंगे। तो वो हमारा एक मैथमेटिकल अप्रोच पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद, और फिर हम लोग इसी में आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह सारा इसी के अंदर अपन लाने की कोशिश करें। सो